Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 21.2 स्वदेशी एंड बॉयकॉट द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स। स्वदेशी और बहिष्कार, गरमपंथी राजनीति के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। द फेज बिटवीन 1885 to 1905 is known as the period of the moderates। 1885 से 1905 ईस्वी के बीच के चरण को गरमपंथियों का काल कहा जाता है। In 1905, Lord Curzon, the then Governor General, announced the partition of Bengal। सन 1905 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। The province of Bengal at that time comprised of the present state of West Bengal, Bihar and Jharkhand, Odisha and Assam। उस समय के बंगाल में वर्तमान पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, ओडिशा और असम शामिल थे। It also included the present country of Bangladesh। It was indeed a very large administrative unit। इसमें वर्तमान बांग्लादेश भी शामिल था। निःसंदेह यह एक बहुत ही विस्तृत प्रशासकीय इकाई थी। However, the way the partition was done clearly showed the divisive policies of the British। किंतु इसके विभाजन के तरीके अंग्रेजों की फूट डालने की नीति साफ जाहिर कर दी। Firstly, it was on the lines of religion, whereas the areas where Hindu were in majority were separated from Muslim majority areas। अब देखिए, एक तो यह विभाजन धर्म के आधार पर था। जिन क्षेत्रों में हिंदुओं की आबादी अधिक थी उन्हें मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्रों से अलग किया गया। Moreover, the urban bases of the resurgent intelligentsia, English educated upper caste Indian, was separated from the mainly cultivating areas। Most significantly, the jute producing areas was also an attempt to reduce the significance of Calcutta, where the intelligentsia from all over Bengal met and inspired each other। अब देखिए, इसके अतिरिक्त पुनरुज्जीवित बौद्धिक अंग्रेजी शिक्षित उच्च वर्ग भारतीय वर्ग के शहरी आधार वाले स्थलों को मुख्यतः खेतीबाड़ी वाले क्षेत्रों, मुख्य रूप से जूट पैदा करने वाले क्षेत्र से अलग कर दिया गया, जिसके पीछे उद्देश्य था कलकत्ता के महत्व को कम करने का प्रयास, क्योंकि यहीं पर पूरे बंगाल के बौद्धिक वर्ग के लोग आपस में मिलते थे और एक दूसरे को प्रेरित करते थे। There were widespread protests following this announcement। इस घोषणा के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। Initially, the protest was on the lines of the prayer and petition tactics of the moderates, whereby petitions and memoranda were addressed to the colonial government, and speeches, public meetings, and press campaigns were held। This was an attempt to influence the public opinion in India and in England। In spite of these attempts, the partition of Bengal was announced in July 1905। अब देखिए, शुरू में यह विरोध नरमपंथियों के अनुनय विनय प्रेयर एंड पिटीशन की युक्तियों के रूप में किया गया, जिसमें औपनिवेशिक सरकार के नाम याचिकाएं और ज्ञापन भेजे गए। भाषण, दिन भर सार्वजनिक सभाएं आयोजित की गईं और प्रेस आंदोलन चलाए गए। यह भारत और इंग्लैंड में जनमत को प्रभावित करने का प्रयास था। इन प्रयासों के बावजूद जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन घोषित कर दिया गया। आगे देखिए। As soon as the final announcement was made, Bengal broke out in protest। अंतिम घोषणा होते ही बंगाल में विरोध की आग फूट पड़ी। Protest meetings were held all over Bengal, and most significantly, not only in Calcutta, but also in the smaller towns in the interiors of Bengal, example, Dinajpur,
पबना, फरीदपुर, ढाका, बरिसल etc. अब देखिए, पूरे बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गईं और खास तौर पर न सिर्फ कलकत्ता में बल्कि बंगाल के अंदरूनी छोटे कस्बों जैसे दिनाजपुर, पाबना, फरीदपुर, ढाका, बड़िसाल इत्यादि में भी सभाएं हुई. The decision to boycott British goods was taken up for the first time in one of these meetings. अब देखिए, ऐसे ही एक सभा में पहली बार ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का निर्णय लिया गया. Formal proclamation of the Swadeshi movement was made on August 7, 1905, with the passing of the boycott resolution in a meeting at the Calcutta Town Hall, which brought about the unification of the hitherto dispersed leadership. 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक में बहिष्कार का संकल्प पारित करके स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई, जिसमें अब तक बिखरे नेतृत्व को एकजुट बना दिया. On the day of the partition was put into effect, that is October 16, 1905, a hartal was called in Calcutta and a day of mourning was declared. अब देखिए, जिस दिन विभाजन लागू किया गया था यानी 16 अक्टूबर 1905 को, उस दिन कलकत्ता में हड़ताल की गई और उसे शोक दिवस घोषित किया गया. People fasted and no fire was lit in the cooking hearth. People paraded on the streets singing Bande Mataram. The people of Bengal tied rakhis on each other's wrist as a symbol of solidarity. सभी लोगों ने उपवास किया और किसी भी घर में खाना पकाने के लिए चूल्हे नहीं जलाए गए. वंदे मातरम का गीत गाते हुए गलियों में परेड निकाली गई. बंगाल के लोगों ने एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी. आगे देखिए, दिस peculiar form of mass protest and of Swadeshi and boycott attained popularity among the new members of the Congress, who were more impatient than the moderates to see a positive response to their efforts. इस विशेष प्रकार के स्वदेशी और बहिष्कार के जन विरोध ने कांग्रेस के उन नए सदस्यों को भी लोकप्रियता हासिल कर ली जो अपने प्रयासों के अनुकूल परिणाम देखने में नरमपंथियों से ज्यादा असहनशील थे. लोकमान्य तिलक took the message of Swadeshi and the boycott of foreign goods to Bombay and Pune. Ajit Singh and Lala Lajpat Rai to Punjab and other parts of northern India. Syed Haider Raza to Delhi and Chidambaram Pillai to Madras Presidency, which was also motivated by Bipin Chandra Pal's extensive lecture tours. आगे देखिए, लोकमान्य तिलक स्वदेशी और विदेशी सामान के बहिष्कार के संदेश को मुंबई और पुणे लेके गए. अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब में और उत्तर भारत के अन्य भागों में लेके गए. सैयद हैदर रजा दिल्ली तक और चिदम्बरम पिल्लई मद्रास प्रेसिडेंसी तक इस संदेश को लेकर गए, जो कि विपिन चंद्रपाल के विस्तृत भ्रमणों के दौरान दिए गए व्यापक वक्तव्यों से भी प्रेरणा ले रहे थे. लेक्चर को वक्तव्य कहते हैं. द INC formally took up the Swadeshi call in its Benares session in 1905, presided over by G.K. गोखल. कांग्रेस ने स्वदेशी के आह्वान को गोपाल कृष्ण गोखल G.K. गोखल की अध्यक्षता में सन 1905 में हुए अधिवेशन के दौरान औपचारिक रूप से अपनाया. Although the Congress supported Swadeshi movement in Bengal, it did not envisage the further intensification of the movement throughout India or the extension of the cause to total independence.
हालांकि कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इसने इस आंदोलन को और आगे संपूर्ण भारत के स्तर पर अथवा संपूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य तक विस्तारित नहीं किया। The extremist leadership of Tilak, Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai, Aurobindo Ghosh, etc., wanted just that. This extremist pressure promoted Dadabhai Naoroji in his presidential address in Calcutta session of the Congress to say that the ultimate goal of the INC was self-government or Swaraj. अब देखिए, बोल रहा है तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरबिंदो घोष इत्यादि जैसे चरमपंथी नेताओं की इच्छा केवल यही थी। चरमपंथियों के इस दबाव ने दादा भाई नारोजी को कलकत्ता अधिवेशन के दौरान अपने अध्यक्षीय संबोधन में यह कहने के लिए प्रेरित किया कि कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है स्वशासन या स्वराज। The contribution of the Swadeshi movement was the initiation of new forms of protest. स्वदेशी आंदोलनों का योगदान यह था कि उसने नए किस्म के प्रतिरोधों की शुरुआत की। Some of these terms of protest anticipated many of the methods adopted by Mahatma Gandhi during his satyagraha. विरोध के इन तरीकों में से कुछ ने महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह के दौरान अपनाए गए अनेक तरीकों की पृष्ठभूमि तैयार की। These new forms of protest were mass meetings, processions, boycott of foreign goods, later extended to boycott of government schools, colleges, courts, titles, and government services, and organization of strikes, burning of foreign goods in public, picketing of shops selling foreign goods. Attempts were made to achieve mass mobilization, and samitis were formed which penetrated deep into the interiors of Bengal, spreading the Swadeshi message. अब देखिए, विरोध के इन तरीकों में से कुछ ने महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह के दौरान अपनाए गए अनेक तरीकों की पृष्ठभूमि तैयार की। विरोध करने के ये नए तरीके थे जनसभाएं, जुलूस, विदेशी सामान का बहिष्कार, बाद में जिसका विस्तार सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों, उपाधियों और सरकारी सेवाओं का बहिष्कार तक हो गया। हड़तालें, सार्वजनिक रूप से स्वदेशी सामान को जलाना और विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों के सामने धरने इत्यादि। व्यापक स्तर पर जनमानस में सक्रियता पैदा करने के प्रयास किए गए और ऐसी समितियों का गठन किया गया जिन्होंने बंगाल के अंदरूनी हिस्सों में जाकर स्वदेशी का संदेश फैलाया। For the first time in the national movement, there was the use of traditional and popular festivals to reach the people. पहली बार जन सामान्य तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में पारंपरिक और लोकप्रिय त्योहारों का इस्तेमाल किया गया। द गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल इन महाराष्ट्र were employed by Tilak to draw the masses to the movement and educate them about it. आगे देखिए, in Bengal, the use of Swadeshi songs was made to inspire the people. The popular theatre form known as Jatra was also used to spread nationalist feelings. This movement was accompanied by a great outburst of cultural activities. अब देखिए, महाराष्ट्र में तिलक द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को इस आंदोलन की ओर आकर्षित करने और इस संबंध में उन्हें शिक्षित करने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव का उपयोग किया गया। बंगाल में लोगों को प्रेरित करने के लिए स्वदेशी गीतों का प्रयोग किया गया। लोकप्रिय रंगमंच यात्रा की एक किस्म को राष्ट्रीय भावनाओं के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया गया। इस आंदोलन के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों की एक बाढ़ सी आ गई।
Finally, the colonial government was compelled to withdraw the partition in the form in which they had envisaged it. However, they did try to decrease the importance of Calcutta and hence the intellectuals of Bengal by shifting the capital to Delhi in 1911. अंत में औपनिवेशिक सरकार उस रूप में विभाजन को वापस लेने के लिए मजबूर हो गई जिस रूप में उसने इसकी परिकल्पना की थी। फिर भी उन्होंने सन 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करके कलकत्ता और उसके साथ साथ बंगाल के बुद्धिजीवियों के महत्व को कम करने का प्रयास तो किया ही,